1 ईयर का बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 1 Corinthians 9 chapters, Psalms 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 128 से लेकर 134 चैप्टर्स तक हमने सैम्स में से पढ़ना है। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, पहले कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय, भजन संहिता 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, इतने अध्याय 128 से लेकर 134 अध्याय तक हमने पढ़ना है। इंग्लिश में जब ये वचनों को पढ़ेंगे, अध्यायों को पढ़ेंगे, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं आबा फादर गॉड, हम इस वचन के अधीन आ जाते हैं और हम सारे मुश्किल समयों में तेरे वचन का सहारा लेकर पिता आगे बढ़ने का आज परमेश्वर हमें हियाव प्राप्त होने दे। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, ये वचन जीवित हो जाए हमारे जीवन के अंदर और हम गवाही हो जाए परमेश्वर के महान कामों को देखने के लिए जो ये वचन में लिखे हुए हैं। और इससे भी ज़्यादा पवित्र आत्मा, हम आपके अधीन आ जाते हैं और हम चाहते हैं कि हमें आज्ञा पालन में लेकर आइए। जितना हमने अभी तक आज्ञा पालन किया उससे ज़्यादा आज हमारे आज्ञा पालन में बढ़ोतरी कीजिए और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास जगाइए हम में। ये वचन हमारे अंदर फिट एंड फिक्स करे, हमको सभी बातों में हमें सुधार कर सही मार्गदर्शन में और सच्चाई में, ऑर्डरलीनेस में हमें रचना कर दे। नासरी यीशु के नाम से पवित्र आत्मा, हम तुझे इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं हमारे इस समय में। आप हमारी सहायता कीजिए। आपको परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से, नासरी यीशु के नाम से हम विनती प्रार्थना करते हैं। सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। 1 Corinthians chapter 9। किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ रहे। Paul asserted his apostolical character and a right to a maintenance life compared to a race. He striveth to obtain an incorruptible crown. First verse से पढ़ेंगे। Am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are not ye my work in the Lord? If I be not an apostle unto others, yet doubtless I am to you. For the seal of mine apostleship are ye in the Lord. Mine answer to them that do examine me is this: Have we not power to eat and to drink? Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles? And as the brethren of the Lord, and Cephas, or I only, and Barnabas, have not we power to forbear working? Who goeth our fear any time at his own charges? Who planteth a vineyard and eateth not of the fruit thereof? Or who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock? Say I these things as a man? Or saith not the law the same also? For it is written in the law of Moses, Thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. Doeth God take care of oxen? Or saith he altogether for our sakes? For our sakes, no doubt. Thus this is written, that he that ploweth should plow in hope, and that he that thresheth in hope should be partaker of his hope. If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? If others be partakers of this power over you, are not we rather?
Nevertheless, we have not used this power, but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. Do ye not know that they which minister about holy things live of the things of the temple? And they which wait at the altar are partakers with the altar? Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. But I have used none of these things, neither have I written these things, that it should be so done unto me. For it were better for me to die than that any man should make my glorying void. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me, yea, woe is unto me, if I preach not the gospel. For if I do this thing willingly, I have a reward, but if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. What is my reward then? Verily, that I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel. For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more. And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews to them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. To them that are without law, as without law, being not without law to God, but under the law to Christ, that I might gain them that are without law. To the weak became I as weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save some. And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run not as uncertainly, so fight I not as one that beateth the air, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means when I have preached to others, I myself should be a cast away. यही वचनों को हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय पहले वचन से, प्रेरित के अधिकार और कर्तव्य। पहले वचन से, क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरे, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? या केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े? कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई
तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारे शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक न होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं? इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया, और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंत मेंत कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में न लाऊं। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। मसीही दौड़ 24 वचन से आगे, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। Psalms 128 चैप्टर से लेकर 134 चैप्टर तक पढ़ते जाएंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। Psalms 128 Sun dry blessings which follow those who fear God. A song of degrees. First verse से पढ़ेंगे। Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in his ways. For thou shalt eat the labor of thine hands. Happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house, thy children like olive plants round about thy table. Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the Lord. The Lord shall bless thee out of Zion, and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life. Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel. Psalms 129. God's goodness in saving Israel out of their great afflictions. Prayer against the haters of Zion.
A song of degrees. पहले वर्ष से पढ़ेंगे. Many a time have they afflicted me from my youth. May Israel now say, many a time have they afflicted me from my youth, yet they have not prevailed against me. The plowers plowed upon my back, that they made long their furrows. The Lord is righteous, he hath cut asunder the cords of the wicked. Let them all be confounded and turned back that hate Zion. Let them be as the grass upon the housetops, which withereth afore it groweth up, wherewith the mower feeleth not his hand, nor he that bindeth shews his bosom. Neither do they which go by say, the blessing of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Psalms 130. The psalmist in distress professes his hope in prayer, his patience in hope, exalts Israel to hope in God. A song of degrees. First verse say, out of the depths have I cried unto thee, O Lord. Lord, hear my voice. Let thine ears be attentive to the voice of my supplications. If thou, Lord, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared. I wait for the Lord, my soul doeth wait, and in his word do I hope. My soul waiteth for the Lord more than they that watch for the morning. I say, more than they that watch for the morning. Let Israel hope in the Lord, for with the Lord there is mercy, and with him is plenteous redemption, and he shall redeem Israel from all his iniquities. 131 chapter. Psalms 131. David prophesying his humility exhorts Israel to hope in God. A song of degrees of David. Lord, my heart is not haughty, nor mine eyes lofty, neither do I exercise myself in great matters or in things too high for me. Surely I have behaved and quieted myself as a child that is weaned of his mother. My soul is even as a weaned child. Let Israel hope in the Lord from henceforth and forever. Psalms 132. David's prayer at the remaining of the ark, with a repetition of God's promises. A song of degrees. First verse say, Lord, remember David and all his afflictions, how he sware unto the Lord and vowed unto the mighty God of Jacob. Surely I will not come into the tabernacle of my house, nor go up into my bed. I will not give sleep to mine eyes, or slumber to mine eyelids, until I find out a place for the Lord, and habitation for the mighty God of Jacob. Lo, we heard of it at Ephrathah. We found it in the fields of the wood. We will go into his tabernacles. We will worship at his footstool. Arise, O Lord, into thy rest, thou and the ark of thy strength. Let thy priests be clothed with righteousness, and let thy saints shout for joy. For thy servant David's sake, turn not away the face of thine anointed. The Lord hath sworn in truth unto David, he will not turn from it. Of the fruit of thy body will I set upon thy throne. If thy children will keep my covenant and my testimony that I shall teach them, their children shall also sit upon thy throne for evermore. For the Lord hath chosen on he hath Zion,
For the Lord hath chosen Zion, he hath desired it for his habitation. This is my rest forever. Here will I dwell, for I have desired it. I will abundantly bless her provision. I will satisfy her poor with bread. I will also clothe her priests with salvation, and her saints shall shout aloud for joy. There will I make the horn of David to bud. I have ordained a lamp for mine anointed. His enemies will I clothe with shame, but upon himself shall his crown flourish. Psalms 133. Benefit of the communion of saints. A song of degrees of David. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard, that went down to the skirts of his garments, as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Psalms 134. An exhortation to bless God. A song of degrees. First verse say, Behold, bless ye the Lord, all ye servants of the Lord, which by night stand in the house of the Lord. Lift up your hands in the sanctuary, and bless the Lord that made heaven and earth. Bless thee out of Zion. भजन संहिता 128 अध्याय से लेकर 134 अध्याय तक हम हिंदी में पढ़ेंगे। BSI बाइबल में से परमेश्वर का भय मानने की आशीष। यात्रा का गीत पहले वचन से, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। 128 अध्याय का पहले वचन से हम पढ़ रहे हैं। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपनी नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। शत्रुओं की पराजय के लिए प्रार्थना। यात्रा का गीत 129 अध्याय पहले वचन से, इज़राइल अब यह कहे, मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार क्लेश देते आए हैं। मेरे बचपन से वे मुझको बार बार क्लेश देते तो आए हैं, परंतु मुझ पर प्रबल नहीं हुए। हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। यहोवा धर्मी है, उसने दुष्टों के फंदों को काट डाला है। जितने सियोन से बैर रखते हैं उन सबों की आशा टूटे और उनको पीछे हटना पड़े। वे छत पर की घास के समान हो जो बढ़ने से पहले सूख जाती है, जिससे कोई लवने वाला अपनी मुट्ठी नहीं भरता, न पुलियों का कोई बांधने वाला अपनी अंकवार भी भर पाता है। और न आने जाने वाले यह कहते हैं, यहोवा की आशीष तुम पर होवे। हम तुमको यहोवा के नाम से आशीर्वाद देते हैं। करुणामय परमेश्वर। यात्रा का गीत 130 अध्याय पहले वचन से, हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन। तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, वह पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे।
क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इस्राएल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। परमेश्वर में शिशुवत भरोसा। यात्रा का गीत दाऊद का 131 अध्याय पहले वचन से। हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ के गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। मंदिर के लिए प्रार्थना। यात्रा का गीत 132 अध्याय पहले वचन से। हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है। निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूँगा और न अपने पलंग पर चढ़ूँगा, न अपनी आँखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दूँगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न पाऊँ। देखो, हमने एप्राता में इसकी चर्चा सुनी है, हमने इसको वन के खेतों में पाया है। आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें, हम उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। हे यहोवा, उठकर अपने विश्राम स्थान में अपने सामर्थ के संदूक समेत आ। तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग जय जयकार करें। अपने दास दाऊद के लिए अपने अभिषिक्त की प्रार्थना की अनसुनी न कर। यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और वह उससे न मुकरेगा। मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बैठाऊंगा। यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें और जो चितौनी मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर चले, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग बैठते चले जाएंगे। क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। यही मैं रहूंगा, क्योंकि मैंने इसको चाहा है। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। वहाँ मैं दाऊद का एक सींग उगाऊंगा। मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट शोभायमान रहेगा। भाइयों की एकता धन्य। यात्रा का गीत दाऊद का। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। परमेश्वर की स्तुति करने का आह्वान। यात्रा का गीत 134 अध्याय पहले वचन से। हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सियोन में से तुझे आशीष देवे। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 18 चैप्टर 28 वर्स से लेकर 34 वर्स तक। 1 सैमुएल 11 चैप्टर 12 चैप्टर। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 28 वचन से 34 वचन तक। पहले शमूएल की पुस्तक 11 अध्याय 12 अध्याय। जब हमारे व्यक्तिगत समय में हम ये 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान पढ़ेंगे, तो हमने
इसके अंदर से परमेश्वर जो कहता है उन बातों की ओर अपना ध्यान लगाना है। ये हमारे व्यक्तिगत समय में हमको परमेश्वर कुछ दे रहा है। हम ज़रूरी नहीं है कि हमारे चरित्र के लिए कुछ दे। हो सकता है कि हमारे आने वाले समय के विषय में या और कुछ भेद रहस्य जो इस जगत के अंदर मालूम हो जाना चाहिए, ऐसे भी बातें वो हमको देगा। हमने इसे बहुत अच्छे से हमारे अकेले में बैठकर पढ़ते समय हमने उस भेद को, उस रहस्य को, उन बातों को नोट्स बना लेना है जो हमको इससे पढ़ते समय मिलेंगे, और वैसा ही हमारे जीवन को उस वचन के आधार से आज्ञा पालन में लाना है ताकि हम वो वचन का फल लेकर आ सके। और ऐसा व्यक्ति 2 साल के अंत में देखेंगे परमेश्वर के वचन से ढला हुआ व्यक्ति होगा, जिसे परमेश्वर अपने तरीकों में इस्तेमाल करना शुरू करेगा। और ऐसा इस्तेमाल होने के लिए परमेश्वर ने हमें ये वचनों के अधीन जाने का अनुग्रह दिया है, हमें आज्ञा पालन करने का अनुग्रह दिया है। निश्चित हमने इन वचनों का आज्ञा पालन करने का अनुग्रह का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, ये वचन हम में से खोए नहीं खुदा। इन वचनों का जहाँ पर पिता परमेश्वर उतरने की ज़रूरत है वहाँ तक, उस गहराई तक खुदा, उस ऊंचाई तक पिता फैलता जाए, और पिता परमेश्वर हमारे अंदर ये फिट एंड फिक्स करने का काम करे। हम सभी जगहों में ऑर्डरलीनेस में आ जाए खुदा, तेरे व्यवस्थित रूप में और तेरी रचना में तेरे तरीकों से होकर आ जाए। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमारी सहायता के लिए तू आया, इसीलिए धन्यवाद। थैंक यू आबा, वी लव यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन।